السلام علیکم ناظرین، ایس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں فہد شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان پورے میں اس وقت ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کون ہوں گے اور کیا صورتحال بنے گی۔ وزیراعظم صاحب نے کل پارلیمانی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کو ظہرانے پہ بھی بلایا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسرا جو سیاست کا کھیل ہے وہ احسان والا کھیل ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی کسی پر احسان کرے تو دوسری پارٹی جو ہے اس احسان کا بدلہ ضرور دیتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا پیپلز پارٹی کا جو متفقہ کینڈیڈیٹ ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے حلقوں سے بھی بات کی، اندر جو سرگوشیاں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ رضا ربانی صاحب کا نام وہ دیں، اور وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ رضا ربانی صاحب کو نہ صرف انڈورس کرے بلکہ ان کی حمایت بھی کرے۔ بلکہ ان کے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اور یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ دھرنے کی سیاست میں پیپلز پارٹی نے جتنا بھی نون لیگ کا ساتھ دیا، اور آپ کو یاد بھی ناظرین ہوگا کہ اگر زرداری صاحب کنٹینر میں آ جاتے تو نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہوتی۔ تو اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کے متفقہ کینڈیڈیٹ کا حال کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی جو سوچ رہی ہے نون لیگ ان سارے معاملات پر پورا اترے گی، نہیں اترے گی؟ یہ آج کا موضوع ہے، اس پر بات کریں گے۔ نئی صاحب السلام علیکم۔ نئی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے تبصرہ لوں، آپ نے 4 مارچ کو ایک ایسٹیمیٹ دیا تھا، فاٹا کی ایک سیٹ کا مارجن ہمارے پاس ہے، کیونکہ 1-2 سیٹیں ادھر سے پیپلز پارٹی نے لینی تھی، وہ تو ہو نہ سکا۔ تو جو آپ نے مارجن دیا تھا وہ میں چاہتا ہوں ناظرین بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ یہ سنوانے کا مقصد صرف اتھینٹیسٹی کو کنفرم کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ڈیلی ہوتا ہے ناظرین کی عدالت میں، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین ذرا سن لیں آپ کا کیا کہنا تھا۔ نہیں صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کرکس بتائیں کل کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عوام کو دیکھیں جی بات یہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ سیاستدان کرتے رہتے ہیں۔ جب ایم پی اے کے الیکشن آتے ہیں تو کہتے ہیں ٹکٹیں بکی ہیں، کسی نے پارٹی فنڈ کے نام پہ لیے، کسی نے کس نام پہ لیے، کسی نے کس نام پہ بیچے، جو بھی ہے۔ کوئی کسی کا عزیز دل لے لیتا ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار لے لیتا ہے، میں ٹکٹ لے دوں گا، کوئی کسی کا بھتیجا لے لیتا ہے، کوئی کسی کا کزن لے لیتا ہے، کوئی کسی کا بیٹا لے لیتا ہے کہ میں ٹکٹ ایم پی اے کا لے دوں گا۔ آپ کو تو ٹکٹ مل رہا تھا، آپ نے مس کیا۔ ہاں، مجھے پارٹی فنڈ کہا گیا تھا، بہت پہلے کی بات۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ایکچوئل ریئلٹی یہ ہے کہ ریئلٹی میں یہ ہے کہ وہ تو ہم غلط کرنے چلا گیا۔ جو میرے حساب سے جو میں نے کیلکولیشن نکالی ہے، جو میں نے بڑا ڈیٹیل سروے کیا ہے، اخباریں پڑھی ہیں، سب کچھ کیا ہے، فیلڈ میں گیا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، سارے مذاکرات، سارے حالات، سارے واقعات کا تجزیہ لیا ہے۔ کچھ ادارے ہی ہمارے دوست ہیں جس سے خبر مل جاتی ہے ہمیں۔ اچھا، تو میرے حساب سے لارجر جو وکٹری ہوگی، لارجر وکٹری، جو لارجر سینیٹر بنیں گے، یعنی جو میجارٹی مینٹین رکھیں گے، میجارٹی ہولڈر ہوگی، یعنی سمپل میجارٹی تو ہوگی، مقصود ہے بالکل میجارٹی تو ہوگی نہیں، کسی کی نہیں بنے گی، وہ کولیجن سے گورنمنٹ بنے، سینٹ چیئرمین بنے گا، پہلے ہی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اسی طرح ہوگا۔ لیکن 28 سے 32 سیٹوں تک مجھے شک ہے کہ پیپل پارٹی لے جائے گی۔ اگر پیپل پارٹی 28 سے 32 لیتی ہے تو پیپل پارٹی لارجر گروپ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، اکثریت ان کی سینٹ میں برقرار رہے گی، اکثریت ہوگی، پھر وہ جے یو آئی سے اتحادی جماعتوں سے الحاق کر کے تو اپنا چیئرمین 28 سے 32 تک سیٹیں ہیں، میرے حساب سے پیپل پارٹی لے گی۔ جی نہیں صاحب، میں فاٹے والی سیٹیں گن کے کہا تھا۔ جی وہ بالکل انکلوڈنگ ہے، اس لیے یہ مارجن تھا ہمارے پاس، کیونکہ 2 ادھر سے سیٹوں کا امکان تھا بڑا قوی جو کنفرم تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے صدارتی آرڈر جاری کیا رات کے اندھیرے میں، اور وہ سارے معاملات جو بنے، تو یہ 28 سے 32 تک کا آپ نے ٹارگٹ دیا تھا، تو اس لحاظ سے وہ 29 بنتی تھی اگر وہ بھی 2 سیٹیں ڈالی جاتی تو، مطلب آپ کا جو مارجن تھا وہ ایگزیکٹ ایکوریٹ تھا۔ اب صورتحال نیازی صاحب، اب 28 ہو جائے گی۔ اب چیئرمین سینٹ کون ہوگا، یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، چیئرمین سینٹ۔ دیکھو جی، چیئرمین سینٹ کون ہوگا، یہ میرا خیال ہے ایک اسٹرانگ کویشچن ہے، لیکن میرا خیال نواز لیگ جو ہے نا، زرداری کے ساتھ، زرداری جسٹیفائی بھی کرتی ہے پیپل پارٹی کہ وہ اس کا چیئرمین سینٹ ہو، رضا ربانی صاحب، نہیں رضا ربانی ہو، فاروق نیک ہو، کوئی ہو، رحمان ملک ہو، یعنی کہ پیپل پارٹی کا نام نامزد کردہ جب پیپل پارٹی کا چیئرمین، جو میری نظر میں ہے کہ وہ ہونا چاہیے اور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف آج اس سٹیج پہ ہے، آج اس مقام پہ ہے، آج سعودی سربراہ اس کا ہے، اس کی وہ کر رہے ہیں
ویلکم کر رہے ہیں یا آج وہ میٹرو مکمل کر رہا ہے یا اور پروجیکٹ کر رہا ہے، تو بیکاز اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور زرداری کے کھیل سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل جو اس کا ٹھیک نعرہ ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کا جو احسان انہوں نے کیا تھا، اتنا بڑا حکومت بچائی، تو وہ احسان واپس کرنے کا وقت آ گیا اور پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. سیاستدان کبھی احسان کا بدلہ نہیں دیتے، جو آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ وہ احسان کا بدلہ دیتے ہیں، کبھی یہ وہ سرگوشیاں ہیں جو حلقوں میں کبھی نہیں دیتے. نواز شریف اپنی جمع تفریق کرے گا اپنے دماغ کے ساتھ، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنائے، وہ اپنی جمع تفریق میں دیکھے گا کہ میں کہاں کمزور کھڑا ہوں یا کہاں مضبوط کھڑا ہوں، اس جمع تفریق سے چلے گا. اور فرض کریں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ رضا ربانی صاحب ہے، اور دھرنوں کے دوران رضا ربانی صاحب کی آواز بڑی پرومیننٹ تھی اس سارے معاملے میں، اور وہ بہت ساری قوتوں کو بہت سارے پیغامات بھی دیتے خیر چوائس نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے، وہ تو چوائس پارٹی کا چیئرمین جس کو بنائے. اچھا وہ تو چوائس نہیں، وہ تو چوائس زرداری جس کا نام دے. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ساری سیاست میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وہ باتیں پرانی ساری کی ساری، وہ وعدے وعید، وہ سارے دوبارہ ہوں گے جو دھرنوں میں ڈسکس ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کی سیاست اور جو باتیں، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے پریکٹیکلی نون لیگ کو بچایا؟ ہاں پریکٹیکلی بچایا، خدا ہے بچانے والا. ہونا کچھ بھی نہیں تھا، میں تو روزانہ کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہونا، لیکن پیپل پارٹی سہارا بنی، انہوں نے سب. ایک بات آپ اور بھی تو کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اگر یہی زرداری صاحب کنٹینر پہ آ گئے تو پھر کب نہیں رہا. میں نے کہا تھا، یہ بھی کہتے تھے، لیکن آپ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ تو دیں. ہاں کریڈٹ ہے، کریڈٹ ہمارے لیے ہے. کریڈٹ کس چیز کا دوں، کس چیز کا کریڈٹ دوں؟ ٹھیک، بالکل صحیح ہے کہ وہ جو کہتا ہے جمہوریت بچائی تو میں کہوں جمہوریت بچائی ہے. بھائی کس چیز کا؟ وہ تو ہونا ہی کچھ نہیں تھا. کریڈٹ نہیں ہے، یہ تو کولیجن پارٹنر ہیں، آپس میں ایم او یو سائن کی ہے، کرپشن کا بول بالا ہے، میٹرو بن رہی ہے، موٹر وے بن رہی ہے، کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا. کریڈٹ اس بات کا تو دوں کہ کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا. ٹھیک نہیں، وہ سسٹم کی بچانے کے لیے. سسٹم کس طرح کا بچنا تھا؟ زرداری یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دوبارہ الیکشن ہو. جب کہتا ہے ابھی ریگو ہوئے ہیں تو بھائی الیکشن تو دوبارہ ہونے سسٹم بچتا ہے نا، سسٹم نہ توڑیں. عمران بھی کہہ رہا تھا سسٹم توڑے. نہیں، وہ ان کے خورشید شاہ بھی کہتے تھے، آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے کہ مڈ ٹرم کا کوئی چانس نہیں ہے. مڈ ٹرم کو تو مانتے نہیں ہیں. چانس کون کہتے ہیں کہ اگر مڈ ٹرم ہوا پاکستان میں تو حالات تو دوسری طرف چلے جائیں گے. کس طرف چلے جائیں گے؟ یہ وہ کہتے ہیں. وہ نہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ مڈ ٹرم 10 دفعہ الیکشن ہوتے ہیں. جب یہ کہہ رہا ہے زرداری صاحب، اس دن جب کھانے پہ ہی تھے تو زرداری صاحب کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن تھے اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن غلط ہوئے ہیں. اور راجہ پرویز اشرف نے اپنی گیم کر سنائی کہ فلاں حلقہ فلاں جگہ پہ اتنے ووٹ ڈلے، اور میرے ہمیشہ ہر دفعہ ہر سال ہر الیکشن میں اتنے ووٹ ہوتے تھے، اور وہاں جب ان الیکشن میں میرے 10 ووٹ ہی نہیں تھے. جب راجہ پرویز اشرف نے سارا دھاندلی کا الزام تفصیل سے میں کر کے سنایا، اور زرداری صاحب نے بھی یہی کہا اور اس کو انڈوس کیا اور کہا کہ راجہ صاحب آپ ان کو ڈیٹیل بتائیں. بتائی گئی. خورشید شاہ صاحب جس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے تھے، اور جس طریقے سے یہ سارے کے سارے وہ تعزیہ نے جو نون لیگ کی کمر پہ لگتا تھا کہ لگنے ہیں، وہ پیپلز پارٹی اپنی کمر پہ کھاتی رہی اس وقت. تو خورشید شاہ جو کہا کرتے تھے وہ بھی ذرا سن لیں، پھر میں آپ کو یہ بھی سنواؤں گا کہ رضا ربانی صاحب ان دنوں میں کیا کہا کرتے تھے اور اب پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہے. ناظرین ذرا سنیے گا کہ علمبردار جو جمہوریت کے نام پہ دہشت گردی کا کھیل کھیل رہے ہیں، ان کو کی وضاحت آ جائے کہ ان کی درخواست پہ، کیونکہ ہمیں سچی بات ہے، رات سے ایمانداری کی بات ہے کہ ہمیں جتنے بھی ڈیموکریٹک ہیں ان کو نیند نہیں آئی. ہمارے کچھ پارلیمنٹرین روئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ وزیر اعظم نے چیف آف دا آرمی اسٹاف کو کہہ دیا کہ میری سالسی کرواؤ. اتنی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. فوج کا ادارہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. وہ ادارہ ہے جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سول فورسز کی مدد بھی کرتا ہے، اور 245 کے تحت آپ نے ان کو بلایا بھی ہے. مگر یہ تاثر جو ابھی انٹیریئر منسٹر نے اپنی تقریر میں اس کی وضاحت کی ہے
कि उनकी दरखास्त पे उनकी मुलाकात हुई है, तो खुदारा इस तासुर को जाया करे और बताया जाए कि ये उनकी दरखास्त में हुआ है, तो उनका पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के सामने चेहरा वाज़िह हो जाए कि वो पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती नहीं चाहते। का क्या ये तो कुछ क्या मकसद है आपका? नहीं साहब, मकसद सिर्फ ये है कि देखें कितनी उन्होंने धुआंधार तकरीर करके, और उन्हें सारी जंग खुद फ्रंट फुट पे लड़ते रहे। नून लीग की जंग भी अपने पास लेते रहे। सियासतदानों की धुआंधार तकरीरें, धुआंधार जो माइक तोड़ता है वो खादम आला तोड़ता है, वो उनको भी आज दिखाएंगे आपकी खिदमत और में। खादम आला ने माइक आज उनके बड़े भाई एक और दावा कर बैठे हैं। नहीं, तो मैं चाहता हूं कि खादम आला ने कितने दफा कहा था कि बिजली आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, और जरदारी को चौराहे पे लटकाएंगे। बहुत सारी दफा कहा था, लेकिन उन दिनों असल खतरे क्या थे, मसाइल क्या थे, क्या जो जमहूरियत को मसाइल दरपेश थे, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल ग्लव्स इन हैंड्स की तरह थे, वो जरा सुन लें, वो खतरा थे। नाज़रीन जरा सुनिएगा। मुझे ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होते हुए धांधली का हमें इंसाफ मिल सकता है, एहतसाब हो सकता है? बताएं ख्वातीन सामने, बताएं बच्चों, कि ये इस तरह है कि कत्ल मैं करूं और मैं ही उसका एहतसाब करूं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि नवाज को आपकी फिक्र नहीं है, उसने आपकी वोट से नहीं आना, उसने तो रिटर्निंग ऑफिसर्स, उसने तो अमला को साथ मिलाना है, उसने तो इलेक्शन कमीशन साथ मिलानी है, उसको आपकी परवाह क्या है? जब आपकी वोट से ही नहीं आना तो उसको आपकी फिक्र क्यों होगी? कीमतें भी वो बढ़ाएगा, वो अपने सारे खानदान को आपके ऊपर मुसल्लत कर देगा। इसका क्या मकसद है? नहीं साहब, अब जरा आप रजा रबानी सुन लें, सारा मकसद आपको क्लियर हो जाएगा। मसला सिर्फ ये चल रहा है इस वक्त कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगर वो रजा रबानी साहब का नाम देते हैं तो मुत्तफिका तौर पर नून उनकी हमायत करे और उस एहसान का बदला उतारे जो उन्होंने पार्लियामेंट बचा के नवाज शरीफ साहब को पीपल पार्टी एहसान का बदला मांग रही है बिटवीन द लाइंस। नहीं, जरा रजा साहब की उस वक्त गुफ्तगू सुन लें, रजा रबानी साहब का क्या कहना है। नाज़रीन जरा सुनिएगा। हम ये समझते हैं कि ये जंग पाकिस्तान की बका की जंग है, ये जंग पाकिस्तान के वफाक की जंग है। अगर अब सिस्टम को डीरेल किया गया, अगर अब आमरीयत को किसी भी सूरत के अंदर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो खतरा सिर्फ 73 के आइन को नहीं है, खतरा पाकिस्तान के वफाक को है। आ रहा था जी, ना उस वक्त को मार्शल आ रहा था, ना उस वक्त, बल्कि मैं तुझे कहता था नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं होना। ये सारा एक ड्रामा रचाया गया, और नवाज शरीफ चूँकि खौफजदा हो चुका था, नवाज शरीफ परेशान था, असम्बली खौफजदा होना कुछ नहीं था। अगर उस टाइम ही ये इलेक्शन दोबारा वो इलेक्शन करवाने का तरीक़ाकार इमरान खान का गलत था, जिस वजह से इमरान खान की हर आदमी ने, हर असम्बली के बंदे ने नफ़ी की जी। जो तरीक़ाकार था कि भाई आप जाएं जी, घर जाएं जी, दूसरा बंदा बिठाएं जी, ये गलत था। अगर इमरान खान जरदारी के साथ मिल के अंदर इन हाउस चेंज ले आता कि जी इलेक्शन होने चाहिए, या उसके में मेजॉरिटी के साथ बातचीत करके, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन हो जाते। ये अगर नवाज शरीफ साहब अभी भी चेयरमैन सेनेट जोड़ तोड़ से अपना ले आते हैं तो ये कार्ड्स पीपल्स पार्टी के पास महफूज हैं और वो इस पर सोचेगी भी नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा इमरान खान होगा को कुछ साथ भी होना। नहीं सब, लेकिन इमरान खान को एक साथ पत्ता होना। उनके पास कार्ड के तौर पर है। नहीं, वो पीपल पार्टी जब वो अभी भी अपना, दावा करते हैं कि 70 से 80 बंदे एमएनएस हमारे पास हैं। देखो जी, जब इन हाउस चेंज में उनकी मदद कर ये होते हैं मफादात के सौदे, सियासतदान किसी के दोस्त नहीं होते, ठीक है, ना किसी की दोस्ती इन्होंने कभी निभाई है। ये होते हैं मफादात के सौदे। अगर नवाज लीग समझेगी कि पीपल पार्टी के साथ कोलिजन में आगे हमने चलना है, तो नवाज लीग जो है वो सेनेट का चेयरमैन
फ्रेंडली अपोजिशन रखनी है तो सेनेट का चेयरमैन पे पीपल पार्टी के नामजद आदमी पे मान जाएंगे। अगर नवाज लीग सोचेगी कि हमने नहीं चलना और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हर तरफ स्ट्रांग है, शुमाल की तरफ ही और जनूब की तरफ ही, नॉर्थ ही और वेस्ट साउथ भी ठीक है, तो वो क्यों पीपल पार्टी की परवाह करेगी? वो तो सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं। वो उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हमें कोई बिल्कुल डिक्टेटरशिप, देखो ना असेंबली चल रही है तो उन्होंने ऑर्डिनेंस दे दिया। नहीं साहब, आपको याद होगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर केस सुनना शुरू कर दिया था कामरान मुर्तज़ा साहब की दरख्वास्त पर, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने एतजाज़ हसन पेश हुए थे और उन्होंने कहा था हम तो बैठे हैं लेकिन एमरजेंसी पर लग गई थी, उन्होंने वो केस नहीं सुना था। इसी तरह जो बातें रज़ा रब्बानी साहब की थी वो अक्सर कहा जाता था, सियासी मुबसरीन कहते थे कि वो बहुत सारी गैर सियासी क़ुव्वतों को बहुत बड़ा मैसेज भी है, तो वो ज़रा सुन लें उनका क्या कहना होता था उन दिनों में। तो इस वजह से ये मुत्तफ़िका कैंडिडेट जो रज़ा रब्बानी साहब की सूरत में अगर आता है तो बहुत सारे लोग ये भी ख्याल करते हैं कि शायद नून को फिर हमायत करनी पड़े इस वजह। नहीं, वो मेरा ख्याल रज़ा रब्बानी हो, जो फ़ारूक नायक हो, या कोई भी हो पीपल पार्टी का। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा। ये इक्तदार की जंग है, ये अदारों के दरमियान इक्तदार को और स्टेट के कंट्रोल की जंग है। और ये पहली बार है, अगर आप पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लें तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन हुई तो हुकूमत तन्हा हुई, ऑपोजिशन ने उन दूसरी कुव्वतों का साथ दिया। लेकिन आज यह पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि ऑपोजिशन, तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस, वुकला, बार एसोसिएशंस और मीडिया एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और कह रहा है कि पार्लियामान और आइन को हम पामाल नहीं होने देंगे। जी नहीं सर, रज़ा रब्बानी साहब की एक बात तो गलत है। वो कौन और सी? कब मीडिया ने कहा है कि ये नहीं होने दे? वो मीडिया तो कहता था हो गया है और हो रहा है। हाँ ये बात तुमने, एक हाउस था हमारा जो कह रहा था, और वो भी आपका था। हाँ, किस मीडिया ने कहा कि नहीं होने देंगे, जो नहीं होगा? हर बंदा कह रहा था हो गया है। तो रज़ा रब्बानी साहब की बात की नफी जहाँ हो गई, ये सेनेट का चेयरमैन जचता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि एनालिसिस उसने जिस तरह दिया है, हो सकता है किसी और मीडिया ग्रुप की उन्होंने बात की हो। यार मैं कहता हूँ कोई मीडिया ग्रुप नहीं कह रहा था कि ये रहेंगे, गए। नहीं, हमारे अलावा भी एक आध आवाज उठती थी। नो 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 नो, कभी नहीं। इसका मतलब ये एनालिसिस उनका गलत है। गलत है। तो इसकी कोई माफी मुफी उन्हें मिल सकती नहीं है? नहीं नहीं मिल सकती, माफी नहीं मिलती। एनालिसिस ही गलत। अच्छा, इस अदालत में माफी कोई नहीं। ठीक हो गया। अच्छा नहीं साहब, कल ज़ोहराने पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लियामानी लीडर जितनी भी जमातें हैं उनके कायदीन को बुलाया ज़ोहराने पे। देखो तो ये ऊपर से हासिल बजिंजो साहब का मुतफ़िका तौर पर नाम भी वो देना चाह रहे हैं। कौन? नवाज शरीफ नवाज साहब। शरीफ। हाँ, देखो जी बात ये है, नवाज शरीफ के हैं मज़े। नहीं साहब, वो बड़े परेशान थे, सऊदी अरेबिया बड़ा परेशान है, उन्हें फ़ौज चाहिए। नवाज शरीफ साहब को स्पेशली उन्होंने बुलाया है, वो फौज सऊदी अरेबिया की वजह से भी परेशान है, अपनी हुकूमत की वजह से भी परेशान है। आप फरमा रहे हैं उनके मज़े हैं। मज़े मज़े, खजूरें बेहतरीन खाई, शाह ने एयरपोर्ट पे आके रिसीव किया, मज़े ही मज़े। अच्छा ठीक है, तो ज़ोहराने पे कल बुला रहे हैं। तो क्या ज़ोहराने पे बुला रहे होंगे, कोशिश करेंगे कन्विंस करने की। हो सकता है कन्विंस ही कर लें, मैं इसमें कोई अपना तजिया नहीं पेश करता, क्योंकि हो सकता है कन्विंस ही कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी भी मुमकिन है क्योंकि पलड़ा इतना भारी होने के बावजूद भी हुकूमत के भी चांसेस हैं कि ये कन्विंस कर लें? हो सकता है, क्योंकि वो पावर दिन होते हैं ना आजकल, नवाज शरीफ के दिन बहुत अच्छे हैं, आइडियल सिचुएशन चल रही है, आइडियल सिचुएशन। कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा नहीं साहब, JUI फे जो है वो क्या लगता है आपको किस तरफ जाएगी? देखो ना, वो तो जब हालात जिस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने लेकिन भी मेरी जो है 60% राय ये है कि बैलेंस ऑफ पावर यही है। ये बात आपने जो की है यही चल रही है। पीपल पार्टी का सेनेट का चेयरमैन होना चाहिए।
बैलेंस ऑफ पावर यही है, ये बड़ी अच्छी जमहूरियत में, अच्छे मुल्कों में चेक एंड बैलेंसेस होने बड़े ज़रूरी होते हैं। तो आज MQM के साथ भी रब्ता हुआ 17 साल बाद, शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया, तो वो देखो वो अपनी ट्राई पूरी करेंगे, लेकिन अच्छी जमहूरियत और अच्छे मामलात तब के सेनेट का चेयरमैन पीपल पार्टी का हो। तो फिर आप ये नहीं चाहते कि नून भी उन्हें सपोर्ट करे और बामी अफाम तफहीम के साथ हो? देखो ना, ये तो अब पता नहीं कि आने वाला वक्त बताएगा ना कि क्या है। आप समझते हैं कि ऐसा वैसे होना चाहिए, अफाम तफहीम होनी चाहिए? अफवाम तफहीम से पीपल पार्टी का सेनेट का चेयरमैन होना चाहिए। तो अगर हासिल बजिंजो साहब आ जाए तो क्या हर्ज है? कौन सा? नेशनल पार्टी हासिल बजिंजो साहब सेनेटर। इसको बना दें अपना मुतफ़िका तौर पे, फजल रहमान को बना दें, उसके ग्रुप का बना दें, JUIF से बना दें, तो बैलेंस ऑफ पावर रहेगा। मकसद है वो तो उम्मीदवार नवाज शरीफ का है ना। अच्छा, नहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फरतुल्लाह बाबर साहब के भी चांसेस हो सकते हैं। क्यों नहीं होता? छोटे सूबे से हैं और पीपल्स पार्टी उन्हें भी, इसमें क्या आप कहेंगे? बिल्कुल बना। अच्छा नहीं सर, सेनेट इंतखाबात के दौरान जिस तरीके से रातों रात इन्होंने ऑर्डर जारी किए और सेनेट फाटा की सीटों को फ्रीज करवा लिया टाइम टेकिंग के लिए, उस पर आप कोई तबसरा हम आपसे ले नहीं सके? क्योंकि कई दफ़ा हमने कहा है। नहीं, सेनेट के बाद प्रोग्राम आज हमें नहीं था एक, मैंने पहले ही कहा था आप भुलेक्कड़ बंदे हैं। नहीं, सच्ची बात तो आज हो रहा है ना। नहीं तो सच्ची बात इस फोरम पे आपकी राय जो है नहीं, वो तो देखें जी, बात यह है कि उस वक्त तो ये आर्डिनेंस आना भी है, डिक्टेटरशिप ही है ना। नवाज शरीफ आदि है, मैंने तो उस दिन ही बताया था कि वो मार्शल लॉ की सूरत में हो या जमहूरियत की सूरत में हो, डिक्टेटरशिप वही होती है जब वो आ सकता है उस दिन आर्डिनेंस, जो चीज़ पसंद ना हो आर्डिनेंस भेज दो पार्लियामेंट चल रही हो। तो इसका हुकूमत को फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ? टाइम मिल गया है, नुकसान नहीं फ़ायदा हुआ है। अंदर की बात मैं आपको बताऊँ, 3 MNA ने तो मुझे बात की है, फ़ायदा हुआ है जो इनकी तरफ रुझान है लोगों का। नवाज और फाटा वालों को भी फ़ायदा हुआ है कि उनकी कीमत बढ़ गई। अच्छा नहीं सब, एक और ख़बर मैं आज तस्दीक करता रहा हूँ, मुझे तो नहीं समझ आई, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि ये KPK के जो CM है उनसे ये बयान मंसूब किया गया है। कल एक खबर ये भी आई थी कि कुछ सीटों पे इनकी एडजस्टमेंट थी, टेक्नोक्रेट की सीट जो KPK से नून ने निकाली है उस पर PTI ने वोट किया। ये बयान चला भी, कल हुआ भी, लेकिन तस्दीक नहीं आज हो सकी। तो सुलह होगी ना भाई, उसमें तो इनकी सुलह हो गई होगी नवाज लीग और इमरान खान। नहीं सर, फिर भी अगर फ़र्ज़ करें ऐसा है भी, क्योंकि अगर ऐसा इसके बगैर वो सीट निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि इनको हमायत लाजमी किसी ना किसी की चाहिए थी। 2 सीटें KPK से निकालना बड़ा मानी खेज़ है इस लिहाज से। नवाज लीग का, हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपना बड़ा अहम कैंडिडेट बलूचिस्तान से जो है उसे उन्होंने विदड्रॉ करवा के उसे हरा के तो बादीनी साहब जो है इंडिपेंडेंट आए हैं और इंडिपेंडेंट वहाँ से निकले हैं। लेकिन नहीं सब, ओवरऑल ट्रेंड जो है इस दफ़ा जो जिस तरीके से कहा जा रहा था हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, बिक गया, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, क्या समझते हैं? देखें हॉर्स ट्रेडिंग वो तो रोला होता है, जब भी वक़ार आता है तो हॉर्स ट्रेडिंग आपको याद आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो होती इतनी सीटों पे है जो अभी भी हुई है। पहले इंडिपेंडेंट थोड़े ज़्यादा नहीं आ जाते थे, नहीं वो इतनी सीटों पे ही होती है, 5-7 सीटों पे, 10 सीटों पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वो मौके ही इतने ही होते हैं। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड ही हुआ जो होना था, जो एक्सपेक्टेड हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नहीं सर, शॉर्ट ब्रेक एक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा नहीं साहब, सेनेट तो मैं प्रोग्राम के आखिर में दोबारा आपसे डिस्कस करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब आज मुल्तान में मौजूद थे, तो उधर उन्होंने बड़ी अहम बात की, गरीब आदमी की बात की, मजलूम आदमी की बात की, वो ज़रा सुन लें क्या थे। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा। अल्लाह के फजल करम से ये जो है वो बिजली के मामले में भी अब जो है वो, जो मैं आपको बता दूं कि हम इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2017 हम 10,000 मेगावाट इंशाल्लाह पाकिस्तान में नई बिजली लेकर आएंगे। इंशाल्लाह गैप भी पूरा करेंगे जो इस वक्त है सप्लाई और डिमांड में, वो ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोड शेडिंग इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। बिजली हमारे पास नए मंसूबों के लिए मौजूद होगी अल्लाह के फजल करम से। कोई नए कारखाने लगाते हैं, कोई
एग्रीकल्चर में जो है वो बिजली की ज़रूरत होती है, किसी जगह पे भी बिजली दरकार होती है, तो इंशाल्लाह चाहे वो अस्पताल हैं, स्कूल हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या किसी और भी जगह बिजली पाकिस्तान के पास मौजूद होगी। और हमारी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि हम 10,000 मेगावाट जो है वो बस बना के तो जो है वो बैठ जाएं। हमारी कोशिश ये भी है कि बिजली 10,000 मेगावाट मज़ीद बने और सस्ती बने। जिस कीमत पे बिजली आज बन रही है उससे भी बहुत कम जो है वो कॉस्ट पे बने। प्लांट्स अब लगा रहे हैं जिसके तहत LNG जो है वो बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जिसके तहत हम अपना ये हाइड्रो पावर बना रहे हैं, बनाएंगे इंशाल्लाह, और जिसके तहत हम अपना बाकी सोर्सेज से बिजली लेंगे, चाहे वो विंड है या वो सोलर है या कोई और है। तो इंशाल्लाह मैं ये आपको बता रहा हूँ अभी, और मैंने कभी नहीं ये दावा किया कि हम जनाब 3 महीने में या 6 महीने में इस कमी को पूरा करेंगे। बात इलेक्शन से पहले भी साफ़ की थी कौम के साथ, और आज भी साफ कौम के साथ बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस टेन्योर में बिजली के मसले को हम हल करेंगे। लोड शेडिंग का अल्लाह चाहेगा तो हमेशा के लिए ख़ात्मा करेंगे और बिजली वाफर मकदार में मौजूद होगी ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। जी नहीं साहब, अच्छा इससे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब की कुछ बातें आपकी खिदमत में नहीं, ये नवाज शरीफ ठीक कह रहा है। ये कहता था टाइम लगेगा लेकिन बिजली का मसला हल कर देंगे, गोल मोल बात करता था, क्लियर इसने कभी नहीं कहा था। अपना टेन्योर अब 2017 तक पूरा कर जाएगा, होती है पूरी नहीं होती है। अच्छा ये शहबाज शरीफ साहब की ज़रा मैं बात आपको वो डेट देते होते थे, ज़रा सुन लें। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि बिजली को 2 साल में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। शहबाज साहब ने जरूर कहा है जोश खिताबत में कि कम से कम मुद्दत में जितना मुमकिन हो सके हम कोशिश ये करेंगे कि जो सालों में काम होते हैं हम उनको महीनों में करें। इस टेन्योर के खत्म होने तक पाकिस्तान से अंधेरे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। 10 दफ़ा कहा जोश खिताबत में कि बिजली 1.5 साल में पूरी ख़त्म कर देंगे, 2 साल में ख़त्म कर देंगे, 3 महीनों में ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप शहबाज शरीफ के खिताब पे कभी ना गया करें। उस बेचारे को टोटल 8 साल तो हुए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। अजी साहब ये टोटल 8 साल जो है ये कम ड्यूरेशन है क्या? मतलब 8 साल उसके लिए कुछ नहीं है ना। वो अपने टेनोर को भूल जाता है तो 1.5 साल कह गया बिजली ठीक कर देंगे, तो उसको याद है कि हम 1.5 साल हो गए, हम 2 साल से ऊपर जा रहे हैं। चौधरी एतजाज हसन साहब ने एक मशवरा भी दिया था, वो भी जरा सुन लें। बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। लोड शेडिंग 3 महीने में ना खत्म कर दी तो मेरा नाम बदल देना किसने कहा था? साहब आप खुद ही अपना कोई दूसरा नाम तजवीज करते तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। 2-3 नाम मेरे जेल में है। जी नहीं ठीक बात है। आप क्यों शहबाज शरीफ साहब के पीछे लग गए? नहीं मैं नहीं साहब उनके पीछे क्यों लगूंगा, मेरी ये जरूरत। मैंने आपको पहले नवाज शरीफ साहब ने बता दिया ना, आपको क्लैरिफाई किया, पहले मैंने क्लैरिफाई आपको कर दिया कि नवाज शरीफ साहब हमेशा गोल मोल बात करते रहे हैं इलेक्शन से पहले, मार्जिन रखते हैं, मार्जिन के जी जोश, और वो फिर कह गए कि उन्होंने जोश खिताबत में कह दिया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कई काम बिजली को ख़त्म करने के सिलसिले में 3 महीनों में, जब 4 महीनों में जो होते हैं वो 4 दिनों में करेंगे। ये उसने की गोल मोल बात, और सियासतदान को इसी तरह करनी चाहिए, और उसने की। और शहबाज शरीफ को तो प्रॉब्लम ये है ना कि शहबाज शरीफ है, खादमे आला है। नहीं सर, अब ये कह रहे हैं कि LNG के प्लांट लगेंगे, उस पर हम बिजली कन्वर्ट करेंगे। पहले CNG के नाम पे कितने नहीं, LNG ये बाहर से मंगवा रहे हैं और उससे बिजली पैदा करेंगे। प्लांट तो इन्होंने लगा दिए। तो नहीं सर, बहुत सारे मामलों में आपने देखा कि वो जब CNG थी तो उसमें कितने घपले हुए, कितना मिस मैनेजमेंट हुआ। क्या कि लोगों को अब अपने CNG पंप बंद हैं, लोगों के बेरोजगारी।
نہیں وہ نے जन्म लिया, कितने मसाइल पैदा हुए। CNG पंप बंद करने के लिए लोगों के पीछे एक बंदे 10-10 करोड़ पीछे लगा दिया, किसी के पीछे 5 करोड़ लगा दिया, कुछ मुल्क से भाग गए हैं, कुछ को अंदर कर दिया है, CNG चलाने का नाम ही कोई नहीं लेता। और आप बेहतर समझते हैं कि वो कनेक्शन कैसे कैसे बिकते थे और हाँ, किसने खरीदे नहीं और वो किसने बांटे? नहीं देखो ना, जब इन्होंने जब ये आए इन्होंने कहा CNG को इन्होंने ख़त्म कर, इन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीके से ख़त्म किया, ये इनको माने, इन्होंने टेक्निकल तरीके से स्क्रू अप किया लोगों को, यानी CNG गैस वाले वो जो CNGों को और जो गैस इस्तेमाल करते थे कपड़ों के, शुगर, उनको 10-10 20-20 करोड़ उनके ज़िम्मे कर दिया। FUG उनके गले डाल दी, चोरी गले डाल दी, बिल ओवर भेजने, UFG सारी UFG के चक्कर में डाल दिया, चोरी डाल दी, UFG की तहकीक कर थक गया और चोरी चक्कर डाल दी। वो गैस स्टेशनों वाले वैसे ही गैस से भाग गए, कई गैस स्टेशनों लोगों ने गिरा के प्लाजे बनाने शुरू कर दिए, कुछ ने सिनेमाज बना लिए और कुछ जो गैस स्टेशनों वाले मुल्क से बाहर भाग गए। उनके गले जिसका लाख रुपए बिल आता था उसको 20 लाख भेज दिया। अब मीटर ही इनका, लेबॉर्ट्री इनकी, अब जाएं फिरते रहें। और CNG से पहले इन्होंने इस जो CNG है इस प्रोडक्ट से पहले लोगों को इतना मुतनफ़र किया, मालकान को जिनकी वो थी, कि वो परेशान हो गए। अब LNG इन्होंने इंपोर्ट की है, LNG अल्लाह करे कि इससे कामयाब होती है। तो ठीक 5-7 साल बाद ये LNG से भी इसी तरह मुतनफ़र करके मालकान को भगा रहे होंगे। नहीं वो उससे मुतनफ़र नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद ले आ रहे हैं। और आप क्यों इतना सच बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप बुलवाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम है। अगर खुद भी ले आ रहे हैं, अगर 4 पैसे बना भी जाते हैं तो सलूट मारे इनको, क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री एक चीज़ है, उस फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है और लोगों का मसला भी हल हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं LNG का और इस पे जाना चाहिए। और कतर शहबाज शरीफ को जा के उन दिनों में कमर का दर्द उसको शदीद होता था, लेकिन कतर फिर भी खुद जाता था, किसी और को नहीं भेजता था। मतलब वो ये भी मजबूरी है ना बेचारों के लिए। ये बात आपने बार बार इसका नहीं मकसद है, उनके लिए मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं भाई, उनके साथ कोई काम नहीं करने वाला, जाएं तो जाएं किधर। कतर भी शहबाज शरीफ साहब है, नहीं साहब ख्वाजा आसिफ साहब नहीं कतर भी शहबाज शरीफ साहब को खुद जाना पड़ता था, खुद उनसे LNG की उसने बात की, खुद डील की। अब क्या करें, मुल्क चलाना है। खाकान अब्बासी साहब है क्या, खाकान अब्बासी साहब है ठीक है, लेकिन उनको खुद जाना पड़ता है ऐसे मामलात में, उनको खुद, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब को शायद ना कादर बलोच साहब है, कादर बलोच साहब को शायद बात करना ना आए ना, तो वो खुद करते हैं। लिख के दे दे, कुछ नहीं, रिटर्न भिजवा दे, नहीं जो देखे ना। तो फिर क्यों गए कतर? वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं है, LNG तो फेडरल सिस्टम है, क्यों गए कतर? कोई बात नहीं कर सकता, इनमें जो अहलियत है दोनों भाइयों में किसी तो सरकारी विजिट पे नहीं, सब बाकी वज़राए आला भी तो जा सकते थे, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब थे यार। वो कतर के अमीर से बात इसने करनी थी ना बाबा, LNG के बारे इसने ही सौदा करना था ना। तो वो पाकिस्तान के मफाद में इस तरह के अगर सौदे होते हैं, पाकिस्तान के मफाद है, मफाद में LNG का ना मफाद में है। हम तो यार बात सुने, मेरी बात सुने, मैं नादरीन के लिए और आपके लिए एक मुफीद बात बता रहा हूँ कि हम गोल्फ खेल रहे थे, किस्सा जी पता नहीं लाइव प्रोग्राम में बताने का है कि नहीं, हम गोल्फ खेल रहे थे। एक उस वक्त तो एंटी करप्शन का एक जर्नैल था चेयरमैन, उन्होंने कहा जी रेडको ने सड़क बनाई है मरी वाली, उसको चेक करते हैं, वो तो बड़ा पैसा खा गए, पता नहीं कितने रुपए पर स्क्वायर फुट उन्होंने बनाई थी। हम चले गए गाड़ी पे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा, वो एक उनके साथ ब्रिगेडियर एक जर्नैल, हम बैठे, वो रिटायर हैं अभी, रिटायर जिंदगी 2002 की बात आप कर रहे हैं, जब रेडको ने वो बनाया। 2002 नहीं, ये जो है था अपना सैफुर रहमान उस टाइम था या पता नहीं, है मुझे याद नहीं है पूरा सन। तो वहाँ पे जब हम गए कहूटा के इसके पास अपना ये इस्लामाबाद क्रॉस किया, तो इसको क्या कहते हैं, बाराकऊ कहते हैं, बाराकऊ क्रॉस किया तो सड़क देखी, सड़क बड़ी मज़ेदार, गाड़ी जंप ना ऐसे। तो हमने कहा यार बात सुनो, मैंने कहा कुछ खा भी गए हैं तो हलाल का खाया है, अभी कारपेट रोड वो तो खुदा देख रहा है कि कितना खाया है, वो अल्लाह ताला उनका निकालेगा। फैसिलिटी तो क्रिएट कर दी है और बड़ी अच्छी और क्वालिटी के साथ कर दी है,
बाबू कुछ खा जाए ना, इतना न खा जाए जितनी 55 अरब की मेट्रो बना दी है, ये रहती है कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ खा जाएं, कुछ बना जाएं, मुल्क को फ़ायदा दे जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट भी दिया है। वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में, कुछ सालों में पानी का बहरान बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, और कहते हैं कि कंसेंसस नहीं है पार्टियों के दरमियान इस इशू पर। तो खुद वो हुकूमत में बैठे हैं, तो कंसेंसस नहीं, सब किसने पैदा करना है? नहीं, पानी का बहरान कंट्रोल करना चाहिए। वो तो मिसाल के वो ख्वाजा साहब कभी कभी मूड ख़राब करते ही है ना लोगों का। नहीं सब वो डैम्स भी तो नहीं बना रहे उस तवातर से जिस तरह बनने चाहिए। जैसे बनने चाहिए, जितना हमारा कच्चा पेरी है, जितना देखो ना मरीब का पानी सारा ज़ाया होता है, मकसूद पहाड़ों का पानी, उसको कोई इकट्ठा करने वाला नहीं। आप और मैं बैठे जून जुलाई मिनी डैम्स बना लें, छोटे डैम्स बना लें। नहीं, जून जुलाई में हम डेली बिजली पे प्रोग्राम करेंगे, तो फिर किस में डेली लोगों ने बाहर होना है जून जुलाई में सड़कों पे, कभी शक्कर में गिराओ जलाओ। कितने प्रोग्राम कर चुके हो, क्या हुआ है? नहीं सब होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आम आदमी तो बेचारा खुश होता है ना कि चले हमारी आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आइडियल सिचुएशन में चल रहे हैं। हाँ, मकसूद है कितने प्रोग्राम मीडिया का। मेरे ख्याल बिजली के बहरान से कोई हुकूमत घर नहीं जा सकती। किस बहरान से जा सकती है? किसी बहरान से नहीं जा सकती। या 2-2.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख आदमी इमरान खान सड़क पे ले आए ईवान सदर के साथ। नहीं, आज उन्होंने कह दिया, वो कहते हैं कि मैं आज़ादी बस जो है वो लाजमी निकालूंगा, और ये वोट देने को भी उन्होंने मशरूत किया है कि आप कमीशन एक बना दें तहकीकात के लिए, और दूसरा वो नादरा की वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने फ़ीस भी पे कर दी है। हल्का 122 की वेरिफिकेशन होगी नादरा के हवाले से। तो अगर ये कमीशन ना बना तो वो आ जाएंगे, तो वो ये पीरियड गुजार जाएंगे, आ जाए। नहीं सब फिर भी वो आप खुद भी फरमा रहे थे कि उससे मुल्क को कितना नुकसान हुआ। क्या मईशत पाकिस्तान की पीछे चले गई, तो पहले आपस की लड़ाई पहले गई है, फिर आ गई है वापस। इसका मतलब है कि वो बाहर आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क मेरा ख्याल है। हाँ, अगर 2-2.5 लाख बंदा इकट्ठा करके इस्लामाबाद ले आके बैठ जाए तो फिर फर्क पड़ेगा। तो अब भी ऐसी जो सिचुएशन कोई बन सकती है? हाँ, बन सकती है। इसी हुकूमत के खिलाफ 30-40 हज़ार बंदे के साथ कुछ नहीं बनेगा। तो पीपल्स पार्टी फिर इमरान का साथ देते? नहीं, वो इमरान खान अभी आ नहीं सकेगा, क्योंकि दूसरे दोस्त पता नहीं साथ है या नहीं है ना। तो पहले तो किसी की प्रोटेक्शन थी, अब पहुंच गया था। सब ये दोस्त वाली बात। हाँ, दोस्त साथ हो ना, पहले तो उसके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ताल्लुकात थे। हाई लेवल पे पता नहीं थे या नीचे थे सही, कुछ ना कुछ था सही। तो अब शायद वो ना हो, तो उस स्टेज पे देखो ना। आप मेरा ख्याल कादरी साहब का इशारा कर रहे हैं। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं कह रहे। कादरी साहब को जाने नहीं देते, आए नहीं, बस, और मामला सारे हल हो गए। नहीं सर, फिर हम ये करते हैं कि सेनेट इंतखाबात पे आखिरी बात दोबारा से कर लेते हैं। नहीं सर, क्या आप ये समझते हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना सेनेटर, मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट लगा लेगी? चेयरमैन सेनेट हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है पीपल पार्टी का चेयरमैन होगा। और वो जो बात आपने की है कि इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, तवाज़ुन रहना चाहिए, तवाज़ुन रहना चाहिए, पीएम इनका, प्रेसिडेंट इनका। तो नहीं सर, पीपल्स पार्टी के दौर में तो सारी पोस्टें उनके पास भी तवाज़ुन था, इसकी क्या वजह? किस में? मतलब चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का था अपना। हाँ, ये भी आप सदर भी अपने थे, ये भी पीएम आप भी कह सकते हैं कि नवाज शरीफ को कह सकते हैं, भाई जब आप फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे थे तो सदर ही हम थे, प्राइम मिनिस्टर भी हम थे, और सेनेट का चेयरमैन ही हमारा था। नहीं, तो वहाँ तवाज़ुन था उस वक्त। इस दफ़ा कुछ और बहुत सारे मसाइल भी हैं कि बहुत सारी कुव्वतें चाहती हैं वाकई कि ये तवाज़ुन बरकरार रहे। हाँ, लेकिन कुव्वतें क्या कर सकती हैं जो अगर ये इन्होंने इस तरह के हालात हो गए तो? चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, मेरा ख्याल है होना चाहिए और होगा, मेरा ख्याल। नहीं तो नहीं सब, ये अगर अपनी हॉर्स ट्रेडिंग पूरी कर गए, जिस तरह से इन्होंने रातों रात एक ऑर्डर भी जारी कर दिया और कुछ इस तरह की, क्योंकि हुकूमत है, पावर है, मशीनरी सारी इसके अंडर है। इसीलिए तो आप शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं, जो हुकूमत है, पावर है, उनके चंग दिखाते हैं। उसका भाई कह रहा है 2017 में बिजली हम पूरी करेंगे, आप उसके चंग दिखा रहे हैं कि 2-3 महीनों में बिजली पूरी कर देंगे। अच्छा, उसको पीरियड का नहीं पता कि भाई कब हम गवर्नमेंट में आए हैं। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ, हैरान हूँ इस बात पे कि दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा तजादात राय हैं, लेकिन फिर भी आपस में केमिस्ट्री बहुत मैच करती है, अंडरस्टैंडिंग भी है मेरा ख्याल है। हाँ, तो वो मकसद है कि वो शायद वो टाइम पीरियड भूल गया हो, बेचारा 8 साल हुए हैं। नहीं सर, मैंने प्रोग्राम का, अब हमारे पास आखिरी सेकंड्स हैं, आखिरी दफ़ा दोबारा से पूछ रहा हूँ आपसे
کہ ایسا بھی کوئی چانس ہے کہ نون لیگ کا متفقہ بندہ لگ جائے چیئرمین سینٹ؟ کیوں نہیں؟ یا حاصل بزنجو صاحب وغیرہ اس نام ہاں فائنل دیتے کیوں ہیں؟ نہیں، نون لیگ کا ہی لگ سکتا ہے جی. تو یار میں آپ کو کل کا بتایا نا دورانہ اہم ہوگا کہ جی دیکھو جو پاور اس گیم میں ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، حالات کدھر جا رہے ہیں. اب سکون میں ہے. ہاں اگر پریشر کہیں سے ہو تو پھر شاید ذہن کام نہیں کرتا. پریشر نہیں ہے، بس جو میں سننا چاہ رہا تھا آپ فرما چکے ہیں. اب پریشر نہیں ہے، سکون میں ہے. تو سکون میں پولیٹیکل لیڈر سوچتا ہے کہ میں کہاں یہ گیم پتہ ڈالوں کہاں نہیں، کیونکہ سکون ہے. بظاہر تو سکون ہے، اندر کوئی چیز پک رہی ہے تو وہ بعد میں اس کا لاوا پٹے گا نا. ابھی تو سکون ہے. تو سکون میں مثال نواز شریف اگست سپٹمبر میں نواز شریف اپنے فائدے نقصان دیکھے گا، زرداری اپنے فائدے نقصان دیکھے گا. نہیں صاحب بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، ہمیں اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.